Hello and welcome to my channel. I'm Madhurima Sharma and today I'm going to talk about types of research. So let's start. So the types of research can be classified from three different perspectives. First is the application of the finding of a research study. Next is the objective of study. And third is the type of information sought. Or we can say the mode of inquiry used in conducting the study. So under application of the study, we are having pure research and applied research. Under objective of study, exploratory research, descriptive research, correlational and explanatory research. And the type of information sought, quantitative and qualitative. So one by one we will discuss. So first is pure research. This kind of research is academic in nature. जनरली एकेडमिक्स में हम लोग प्योर रिसर्च करते हैं. इट इज़ अंडरटेकन टू in order to gain knowledge about a phenomenon, to develop new technique and procedure that form a body of research methodology. It is also known as fundamental research and is mainly concerned with generalization with the formulation of theory. तो जब हमें just to gain the knowledge and to develop a new technique and a procedure, we do pure research. ठीक है. So हम लोग बोल सकते हैं द मेन मोटिवेशन इन बेसिक रिसर्च इज टू एक्सपैंड इन नॉलेज एंड नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग. जैसे हम लोग नॉलेज गेन करना या एक्सपैंड करना नॉलेज को. एंड दिस रिसर्च फोकस ऑन अ सर्च फॉर ट्रूथ और डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हाउ कैफीन कंजम्पशन इम्पैक्ट द ब्रेन. जस्ट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए. ठीक है. A study assessing whether men or women are more likely to be diagnosed with a depression. ये हो गया example. Next is applied research. So applied research aimed at finding a solution for a immediate problem facing a society or industrial business organization, and it is used to find solution to everyday problem. तो यहाँ पे क्या है? Finding the solution. For example, improving agriculture crop production, ट्रीटिंग और क्योरिंग द स्पेसिफिक डिजीज. ठीक है. सो तो अगर हम लोग को डिफरेंस देखना है अप्लाइड रिसर्च एंड द प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के बीच में, तो देखो द फाइंडिंग ऑफ अप्लाइड रिसर्च कैन बी अप्लाइड टू रिजॉल्व इशू. किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना अप्लाइड रिसर्च में. और जो हमारा प्योर रिसर्च है इट इज़ यूज्ड सिंपली टू एक्सप्लोर सर्टेन इशू एंड एलिमेंट. ठीक है. वहाँ पर जस्ट टू गेन द नॉलेज एंड हियर जस्ट टू फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम. ओके. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ये जो होता है इट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब सिस्टमैटिकली अ सिचुएशन, प्रॉब्लम, फिनोमिनन, service or program, or to provide information about living condition of a community or describe attitude toward an issue. Just to describe whatever exists. ठीक है. So it provide an accurate portrayal of characteristics of a particular individual, situation or a group. इसको हम लोग statistical research भी बोलते हैं. ठीक है. And it discover new meaning, describing what exists and determining the frequency with which something occurs. Next is correlational study. The main emphasis in a correlational study is to discover or establish the existence of relationship between two or more variable or more aspect of a situation. यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? रिलेशनशिप देखना है बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन अ सेल ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं दोनों के बीच का हम लोग रिलेशनशिप देखना है. What is the relation between technology and unemployment? So this is correlational research. Next is explanatory research. So the explanatory research attempt to clarify why and how there is a relationship between the two aspect of the situation or a phenomenon. तो यहाँ पे क्या ना, its primary goal is to understand or to explain the relationship. यहाँ पे explain करना है between the relationship ऑफ द बिटवीन द जो दो वेरिएबल है उसके बीच का रिलेशनशिप देखना है. फॉर एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक. ठीक है. हाउ होम इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द चिल्ड्रंस लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट. तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लेन करना बिटवीन द टू वेरिएबल, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. दिस इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च.
Next is exploratory research. So exploratory research is a study which is undertaken to explore an area where little is known, or to investigate the possibility of undertaking a particular research study. So here you have not that much knowledge, आपके पास बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास बहुत ही कम नॉलेज है अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, उस पर आपको रिसर्च करना है, ठीक है. सो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो जो ऑलरेडी नोन नहीं है चीज़ें. सो इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन आंसर व्हाट, who and why question, and the result of exploratory research are not usually useful for decision making, but they can provide significant insight into a given situation. इसको हम लोग किसी डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं करते हैं, बट एक जो हमें इनिशियली जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमें मिल जाता है. जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ना, ये एक्चुअली इनफॉर्मल हो सकता है, ठीक है, ये एक्चुअली इनफॉर्मल ही होता है, और ये सेकेंडरी डेटा पर रिलाई करता है. फॉर एग्जांपल हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, जो भी अवेलेबल लिटरेचर है, जो भी थोड़े बहुत लिटरेचर अवेलेबल है उसको रिव्यू कर लिया. फिर हमारे पास क्वालिटेटिव अप्रोचेस है, लाइक इनफॉर्मल डिस्कशन हमने कर लिया, जैसे कि कंज्यूमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, ठीक है. या अगर थोड़ा फॉर्मल अप्रोच में जाएंगे तो हम इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं, फोकस ग्रुप है, प्रोजेक्टिव मेथड्स है, केस स्टडीज़ है, ठीक है, पायलट स्टडीज़ है. तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग कुछ नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी बोलते हैं, एंड इट फोकस ऑन नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज टू क्वांटिफाई द वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी इन अ phenomenon, situation or attitude. Okay, it is numerical, non-descriptive, it applies statistics or mathematics and uses numbers. Since the name is quantitative, तो यहाँ पे numbers आएंगे, ठीक है. और जो इसके results है, they are often presented in tables and a graph, and it investigates what, where, when of the decision making. तो जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं वो सारे नंबर्स में डेटा कलेक्ट होते हैं, 1 2 3 100 1000 ऐसे, ठीक है. Next is the qualitative research. So it is also known as unstructured research. जो qualitative study होते हैं, it describes the variation and diversity in a phenomenon, situation or attitude with a flexible approach, so as to identify as much variation and diversity as possible. It focuses on words and meanings. It is non-numerical, descriptive, applies reasoning and uses word. ठीक है, ये आपका नॉन न्यूमेरिकल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है. इट एम्स इज टू गेट मीनिंग, फीलिंग एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन, और इट कैन नॉट बी ग्राफ्ड, एंड इट इन्वेस्टिगेट वाई एंड हाउ ऑफ द डिसीजन मेकिंग, जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, लाइक फ्री आइसक्रीम, तो इसमें ओनली 1 in 30, तो 30 इज अ नंबर, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया. तो ओनली 1 in 30 टेक द फ्री आइसक्रीम इंटरेस्टिंगली, तो ये नंबर्स कलेक्ट किया, तो दिस इज क्वांटिटेटिव. एंड क्वालिटेटिव में जब जाएंगे तो व्हाट डिड यू फील व्हेन यू सॉ द फ्री आइसक्रीम, तो जो रेस्पोंडेंट्स होंगे उन्होंने आंसर दिया एक्साइटेड और लिटिल स्कैर्ड. देन अगेन इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाई वाज दैट. ओके, सो ऐसे जो डेटा कलेक्ट करते हैं दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर. नाउ सम others type of research also we have, like historical research. So this explored the use of history as a method, and the critical examination of the past event or happening in order to know truth and later on to generalize is known as historical research. तो हम लोग historical research में जितने भी histories में जाके हम लोग explore करते हैं data. Ex पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये टर्म आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो. एक्चुअली ये है क्या? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रेडिक्ट्स द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जो ऑलरेडी हो चुका है, अब वहाँ जाके फिर से प्रेडिक्ट करना, ठीक है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ empirically based investigation which does not involve the researcher's direct control over the independent variable, because they have already led to effect which can no more be manipulated. तो यहाँ पे जिस रिसर्चर प्रेडिक्ट करता, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ किसी एक रोड पे और हमेशा ही एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमें पता करना कि
एक्सीडेंट वहाँ पे हो ही क्यों रहा है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वहाँ हो चुका है, अब वहाँ पे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा दिस इज़ द रीज़न, मे बी जो रोड कंडीशन ख़राब है, या ट्रैफिक जो भी है रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, तो ये सारा चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। देन भी हम लोग हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, तब जाके इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज़ दी अटेम्प्ट टू डिस्कवर प्री एग्जिस्टिंग कैजुअल कंडीशन बिटवीन अ ग्रुप। जो भी प्री एग्जिस्टिंग कैजुअल कंडीशन है वो हम लोग उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं व्हाट इज अ पॉसिबल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. So it involves procedure for gaining knowledge by collecting new or fresh observation under a controlled condition. Experiments generally we do in a controlled condition. It reveals the causal relation and interaction. In experimental research, the independent variable as well as dependent variable are involved, where the former can be manipulated as an experimental variable in order to see the effect on the latter. तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये हम लोग चेक करते हैं इन दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो यहाँ पे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल जाता है. नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च. सो ये एक स्पेशल टाइप का रिसर्च होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है ना, द रिसर्चर अपीयर्स एज अ पार्टिसिपेंट रादर ऑब्जर्वर. यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो, आप फील करते हो इसमें कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्लान करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, एंड फाइनली कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना है. सो therefore is actively and even emotionally involved in the result and their application, and it is applied in order to improve specific practices. Action research is based on action evaluation and critical analysis of a practice based on collected data in order to introduce improvement in a relative practices. अब क्योंकि जो रिसर्चर है वही यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, वो एक ऑब्जर्वर नहीं है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. दिस एक्शन रिसर्च इज सिमिलर टू अप्लाइड रिसर्च बट डिफर्स इन द एक्शन प्रोजेक्ट. यहाँ पे हम फिर एक्शन लेते हैं. द एक्शन रिसर्च इज डिपेंडेंट अपॉन द फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड. यहाँ पे फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज फैसिलिटेटेड बाय द पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद अ कॉमन पर्पस. एक कॉमन पर्पस से जो है सारे लोग कोलैबोरेट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देन दिस रिसर्च इज डन. नाउ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, इट इज एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट फॉलोज द सेम सब्जेक्ट रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. सो दिस रिसर्च कैरिड आउट लॉन्गिट्यूडनली इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन एट अ मल्टीपल पॉइंट इन अ टाइम. और इसके बहुत सारे टाइप्स है, फॉर्म्स है, लाइक ट्रेंड स्टडी, कोहर्ट स्टडी एंड पैनल स्टडी. ट्रेंड स्टडी जो होता है, इट लुक्स एट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर अ टाइम. फॉर एग्जांपल, जो ऑर्गेनाइजेशनल एब्सेंटिज्म है रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक पर्टिकुलर ईयर का हमें पता करना है कि जो एब्सेंट जितने ज़्यादा एब्सेंटीज़ हैं उसके बारे में एक पूरे साल का. कोहर्ट स्टडी जो है, इट ट्रेसेस अ सब पॉपुलेशन ओवर अ टाइम. इसमें कोहर्ट ऐसे ग्रुप, कोहर्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का हमें रेट पता करना है, जो जितने लोग एब्सेंट हैं. देन पैनल स्टडी, इट ट्रेसेस द सैम्पल, सेम सैम्पल ओवर अ टाइम. लाइक हमने ग्रेजुएट कैरियर ट्रैक किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1990 to 2000 फॉर द सेम स्टार्टिंग कोहर्ट. जो हमने जिस सैम्पल को लिया था उसको हमने 1990 से 2000 तक हमने उसको स्टडी किया. दैट इज पैनल स्टडी. Next is the cross-sectional study. So it is also known as one shot. So these study are those in which data is gathered once during a period of days, week or a month. Then they are designed to look at how things are now without any sense of whether there is a history or trend at a work. And the defining feature of cross-sectional study is that it can compare different population group at a single point of time. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमें मेजर करना है द कोलेस्टेरॉल लेवल ऑफ अ डेली वॉकर एंड नॉन डेली वॉकर, जो नॉन वॉकर है, ठीक है, अलॉन्ग विथ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक माइट मे बी वी आर इंटरेस्टेड. सो वी वुड नॉट इन्फ्लुएंस नॉन वॉकर to take up that activity or advise the
daily worker to modify their behavior. तो we will not try to interfere, हमें उस पर इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो हमारा जैसे कि एक डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, सो वी गैदर द डेटा वंस, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। I hope you like this video. Like, subscribe and share. Thank you so much.